Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 26th of December. The session will be quite interesting and important. So students, in this video we will be talking about visit of Sri Lankan president to India. Then we will be talking about a contract that has been signed between Ministry of Defence and Larsen and Toubro. This is for the K9 Vajra T self-propelled artillery guns. Then we will be talking about e-Shram portal registrations. Then we will be talking about 61st Raising Day event in West Bengal that was held recently. All these things will be very beneficial for your competitive exams. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe. We are one-stop solution for current affairs. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs students. First is Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake was on a visit to India from 15th to 17th of December. This was his first official visit and first bilateral trip to India after holding the position. During this, remember, India and Sri Lanka signed a double taxation agreement, capacity building and training agreement. Apart from this, both Sri Lankan president and Indian Prime Minister has issued a joint statement that was fostering partnership for a shared future. Next is Ministry of Defence and L&T. They have signed a contract for the delivery of 100 additional K9 Vajra T self-propelled artillery guns. So this contract was given by Ministry of Defence to, and remember, this contract is worth 7,628.7 crore rupees. These K9 Vajra T self-propelled artillery guns, they will be delivered to the Indian Army. These guns are being made under Atmanirbhar Bharat and Make in India initiative. Only the first 10 of these guns were procured. Correct? Next is e-Shram portal. This e-Shram portal has recently registered 30.48 crore workers nationwide, and it is UP that is leading the registration. Now if we talk about this e-Shram portal, basically you should know that what is it? It is a national database of unorganized workers. Now, as it is a national database, this database helps us to provide better services, or helps the central government, various ministries, to provide better services, better targeted welfare schemes, social securities and job opportunities to the people. And it is for FY 2020 to FY 2025. During this period, 704.01 crore rupees has been allocated for this scheme. Now we will look at the states here. Leading, UP is on top, second Bihar, third West Bengal, fourth Madhya Pradesh and fifth Maharashtra. And I repeat again, this is a national database for unorganized workers. Moving on. Next is Union Minister Amit Shah has attended SSB's 61st Raising Day event in West Bengal. What is this SSB? Shastra Seema Bal. So important thing to remember, it is the 61st Raising Day of Shastra Seema Bal, and the event here was attended by whom? Amit Shah, our Home Minister.
right? Here, this function for this Shastra Seema Bal was held where in West Bengal, and who was the chief guest? As I mentioned, Amit Shah, right? Then remember, during this event, Amit Shah has digitally inaugurated the integrated checkpoint in Agartala, Tripura, and the newly constructed residential complex for the Border Force Guard at in West Bengal. Apart from this, the event commenced with a grand parade showcasing the discipline and dedication of the Shastra Seema Bal, and the event included the displays of Malakham, a traditional Indian acrobat art, alongside the martial arts, sports demonstration, physical exercise, and so on. Right? This Shastra Seema Bal, Central Armed Police Force, previously known as the Central Paramilitary Forces under the Ministry of Home Affairs, was established in 1963. Next is Vice President Jagdeep Dhankarji has inaugurated the GSI Geoscience Museum, and it was inaugurated where? It was inaugurated in Gwalior, Madhya Pradesh. This museum was developed in coordination with the Gwalior Municipal Corporation and National Council of Science Museum. This Gwalior Science Museum features two remarkable galleries. First gallery is your Planet Earth. Name of that is Planet Earth. And the gallery 2, it is the evolution of life on Earth. So these are the two galleries that are available here. Next remember, Mumbai Delhi based Mumbai Delhi becomes the world's 8th busiest domestic flight route in 2024. I repeat, which is the world's 8th busiest route, as you can see in the list also here. See, it is from Mumbai to Delhi. It is the 8th busiest domestic flight route in 2024. So the UK-based global travel data provider Official Airline Guide (OAG), that is Official Airline Guide, they have released a report about the busiest flight routes in the world. According to this report, Mumbai Delhi-based route in India ranked the 8th busiest route in the world in 2024, with airlines operating 7.963 million seats. In 2023, this spot was on the 9th position with 7.276 million seats, but now it has increased from this to 8th position with 7.963 million seats. And here in the list, you can see the busiest airport is from Jeju to Seoul. That is, the busiest international airport route in 2024 is between Hong Kong and Taipei with 6.8 million seats. If we talk about the organization, that is OAG, that has released this report, who is the Chief Executive Officer? Phil Callow is the Chief Executive Officer, established in 1929, headquartered in Luton, England. Right here you can see the list: first, second, third, fourth, and fifth. And our Mumbai to Delhi, it was on the 8th position. Next is the highlights of the 208th meeting of the SEBI board. Right, if we look at the meeting, there are some new regulations here. For example, the merchant bankers other than the banks, public financial institutions and their subsidiaries, they shall undertake only permitted activities. There will be two categories of these merchant bankers based on the net worth and activities. They should maintain a liquid net worth of at least 25% of the minimum net worth requirement at all times, and the underwriting limit for these merchant bankers has been prescribed as 20 times of the liquid net worth. Then tightening of the rules for the IPOs, that is your initial public offering, right? An issuer shall make an IPO only when the operating profit of 1 crore rupees from operations for any 2 out of the 3 previous financial years at the time of filing of its draft red herring prospectus. Then apart from this, the SEBI board has approved the following amendments for securitized debt instruments. These SDIs, that is your securitized debt instruments insurance, and its transfer should be listed only in demat form. The SEBI has also launched a new initiative, that is Past Risk and Return Verification Agency, right? That is PARVA. This is launched to prevent the misleading claims about the investment returns. Then SEBI board has also increased the threshold for the identification of the high value debt listed entities from 500 crore rupees to 1000 crore rupees, which is at par with the large corporates. Next is we are talking about an RBI report that states the freebies crowd out resources required for the development. We know that nowadays the political parties are giving out free money, right? They are giving the free money to both the citizens of the state as well as to various individual women by launching various schemes, right? Yeah, and even to the farmers, free electricity, free
money is being also provided, but you need to understand that giving these freebies are somewhere wrong. And when we are providing free monies, it will eventually lead to inflation, and the amount of money that can be could have been utilized for job generation, for employment perspectives, coming up with better infrastructure with various companies, right? That money is going in a freebies now, right? So recently RBI, they released a report that titled "The State Finances: A Study of Budget of 2024-2025." The report has questioned about the soaps like farm loan waiver, free electricity, free transport by state governments that could possibly crowd out their resources for social and economic infrastructure development. The report has also stated that the state governments, for the progress made towards financial consolidation by containing their gross fiscal deficit with 3% of the GDP for 3 consecutive years. Apart from this, remember, as I mentioned, the report has appreciated the state governments for the progress made towards fiscal consolidation by containing their gross GDP within 3% of the GDP for 3 consecutive years. Apart from this, as per the report, the states have estimated a GFD. What is GFD? Gross fiscal deficit of 3.2% of the GDP in FY25 compared to 2.8% of the GDP in FY24. States such as your Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Sikkim, Tripura, they have projected a high GFD in FY25, whereas the larger states like Gujarat, Maharashtra have budgeted lower GFD as per the percentage of GDP. Next is World Bank. They have approved $800 million loan for the development of what? For the development of Amravati. Right? For the development of Amravati. Amravati is where? Amravati is in which state? Can you tell me? Amravati. Amravati is the capital of Andhra Pradesh. Right? In order to do the development here of Amravati city, World Bank has approved $800 million. It is for the Amravati Integrated Urban Development Project that aims to build Amravati as a greenfield capital city of Andhra Pradesh. This loan amounts to a financial maturity of 29 years, right, with a grace period of 6 years. Also, India has chosen to take loan in the Japanese yen. Here, the bank's financing will also attract over 600 million US dollar in private investment, helping the city become financially sustainable and creating economic opportunities for the residents. Next is RBI. They have approved the Canara Bank's plan to sell stake in the two subsidiaries. I repeat, RBI, they have approved Bengaluru, Karnataka-based Canara Bank Limited, a public sector bank's plan to sell part of their shares in Canara Robeco Asset Management Company, right, that is headquartered in Mumbai, Maharashtra, and Canara HSBC Life Insurance Company Limited, based in Gurugram, Haryana. Next is economy and business. Premier Explosives and Global Munitions, they have signed a memorandum of understanding to establish a joint venture in defense and aerospace. Right? Take a note of this. This joint venture will be structured in a 51:49. That is, here Premier Explosive 51% and Global Munitions 49%. Right? And this move will basically is expected to bolster the Premier Explosives position in the market. Next is Nvidia. They have partnered with Vietnam to establish AI research and development and data centers there. Very important and good strategy, and it will be very benefiting Vietnam in the long run. Right? So California, USA based Nvidia Corporation, they signed the agreement with the government of Vietnam to jointly set up Artificial Intelligence Research and Development Center and AI Data Center in Vietnam. This research and development center will focus on software development, taking advantage of the country's skilled engineers in science, technology, engineering, and mathematics. Also, it will collaborate with industry leaders, startups, government agencies, universities, and students to promote the use of AI. Next, students, we are talking about awards and recognition. Recently, Ram Temple in Ayodhya has won the Sword of Honor Award for Safety Excellence. I repeat, recently awards were given, and Ram Temple, correct? Where is this Ramji Temple located? It is located in Ayodhya, Uttar Pradesh, and it has been recently honored with the Sword of Honor Award by the British Safety Council. This project is being designed and constructed by L&T, and this BSC, that is your British Safety Council, conducted an audit of the process and practices, followed by the on-site activity assessment to recognize the project's commitment to safety management. Right? And this Sword of Honor is awarded only to projects with a 5-star safety rating. This Ram Temple, this was built
in a traditional Nagar style, and this structure includes 392 pillars and 44 doors. And this project temple is being constructed with approximately 15 lakh cubic feet of Bansi Paharpur stone from Rajasthan. Right, and the construction of the Ram temple is projected to be scheduled to be finished by June 2025. Next is IWAI, that is your international terminal at the Kalughat in Bihar, gets recognition for sustainable infrastructure project. I repeat, IWAI, it is your Inland Waterway Authority of India, right? So Inland Waterway Authority of India's Kalughat IMT, right? They have recently got the recognition for the sustainable development project. Also, they have been awarded with 5-star Swagraha, awarded with the 5-star Swagraha, that is simple, versatile, affordable Griha rating by Green Rating for Integrated Habitat Assessment Council for maintaining environmental sustainability throughout the use of recycled materials during the construction of the terminal. The terminal is made under World Bank funded Jal Marg Vikas project for capacity expansion of the National Waterway 1, that is of Ganga River. Alright, it has been built with a cost of 82.48 crore rupees. If we talk about this Swagra rating, right, this is a joint venture of Ministry of New and Renewable Energy and Delhi-based the Energy and Resource Institute, which recognizes the environmentally sustainable practices of Inland Waterways Authority of India in making the IWT a infrastructure. Next is Maharashtra's Government at Your Doorstep initiative have won the Scotch Award. I repeat, who won the Scotch Award? It is the Maharashtra government's initiative, Shashan Alpya Dari, right? That is, the government at your doorstep has won the Scotch Award for their excellence in the citizens-focused government and commitment to deliver the efficient public services. The program was chosen from among the 280 projects across various categories nationwide. This initiative, Government at Your Doorstep, was launched in May 2023 at Patna in Satara district, and under this initiative various benefits of the government schemes such as subsidies on tractors, Gopinath Munde Farmer Accident Insurance Grant, allocation of houses under Pradhan Mantri Awas Yojana, right? All these schemes are being provided. Who is the Chief Minister of Maharashtra now? Devendra Fadnavis. Next is REC Limited has won the Golden Peacock Award 2024 for excellence in the corporate governance. Direct question can be asked that who won the Golden Peacock Award 2024? Won by REC Limited. This is a Maharatna Central Public Sector undertaking that comes under the Ministry of Finance, Ministry of Power. They have recently won the Golden Peacock Award for excellence in the corporate governance. Next is appointments and resignation. Preeti Lobana has been appointed as the Google India's new country manager and vice president. I repeat, Preeti Lobana as the new country manager and vice president for India. She will replace the interim head Roma Datta Chaube and will succeed Sanjay Gupta, who has moved to the role of president for the Asia Pacific region. Next is Science and Technology. MDL, that is your Madgaon Dock Shipbuilders Limited. They have delivered the 2 advanced warships, that is Nilgiri and Surat, to the Indian Navy. Right? So I repeat, these are the 2 ships, that is, these are the 2 warships, Nilgiri Yard 12651 and Surat Yard 12707. They have been delivered to the Indian Navy in Mumbai, Maharashtra. Also remember this thing, that Nilgiri is the first stealth frigate of the Project 17A class and Surat is the 4th stealth destroyer and final ship of the Project 15B class guided missile destroyer. Next is obituary. Former Haryana Chief Minister Om Prakash Chautala ji has recently passed away, as you can see him in the picture here. Right? He was a 5-time Chief Minister of Haryana, passed away at the age of 89 in Gurugram, Haryana. Next is economic historian Amiya Kumar Bagchi has also recently passed away, right? So former professor and an economic historian and founder director of the Institute of Development Studies, Kolkata, Amiya Kumara Bagchi recently passed away due to age-related complications. He was awarded with Padma Shri in 2005, right? And Amiya Bagchi was the founder and director of the Center for Studies in Social Science in 1974 in Kolkata. Next is National Farmers Day, observed on 23rd of December, and this day is observed to create awareness about the farmers and to honor the farmers' contribution to the overall social and economic development of India. Also, this commemorates the birth anniversary of Bharat Ratna Chaudhary Charan Singh, the 5th Prime Minister of India, and the theme for the National Farmers Day is Empowering Andatas for a Prosper Nation. And this year, Chaudhary Charan Singh's 122nd birth anniversary was
observed. For the first time, this day was observed in 2001. So that's all for the day, students. I hope the session was up to the mark. Now, students, let's move to some revision part that will be beneficial in your learning. Next, who has recently won the 2024 Women's Tennis Association Player of the Year Award? तो वो है एरियाना सेबलेंका. मार्क करके चलेंगे. ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बेलारूस से बिलोंग करती हैं. Next, in December, the Honorable President of India, Draupadi Murmu ma'am, conferred the National Panchayats Award upon 45 अवॉर्डीज. तो 45 अवॉर्डीज को दिए गए. क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द अवार्ड कैटेगरी अंडर द नेशनल पंचायत अवार्ड 2024. तो स्वच्छ ग्राम पंचायत पुरस्कार यहाँ पे ये कैटेगरी नहीं है, बाकी चारों इस कैटेगरी हैं जिसमें 45 अवॉर्डीज को यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित करा गया. नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिसेंटली जीता एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 मेंस एशिया कप टाइटल बाय डिफीटिंग इंडिया इन द फाइनल, जो कि दुबई यूएई में हुआ. तो किस कंट्री ने जीता ये एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 मेंस एशिया कप टाइटल? तो ये जीता गया बांग्लादेश के द्वारा. एंड दिस इज फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम इनके द्वारा ये टाइटल जीता गया है. ये 11th एडिशन था अंडर 19 मेंस एशिया कप का, जो कि 8 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था. कहाँ पर हुआ? दुबई यूएई में हुआ. और पहली बार बांग्लादेश ने, जैसे मैंने बताया, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम जीता है. तो लास्ट ईयर 2023 में इन्होंने जीता था. नेक्स्ट, वेयर वॉज द अष्टलक्ष्मी महोत्सव फेस्टिवल हेल्ड फ्रॉम 6 to 8 ऑफ दिसंबर? तो ये जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव फेस्टिवल है, ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया न्यू दिल्ली में. ऑब्जर्व किया गया न्यू दिल्ली में भी. कहाँ पर? भारत मंडपम में इसको ऑब्जर्व किया गया. और ये एक कल्चरल फेस्टिवल है. नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली नेम्ड द 2024 मेजर लीग सॉकर प्लेयर या फिर सॉकर्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर? तो वो है लायनल मेसी, अर्जेंटीना के लिए. ये अर्जेंटीना से ये बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्च ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ ग्रीन स्टील फॉर इंडिया इन न्यू दिल्ली? अगर इसमें से हम देखें तो कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा आपका? ऑप्शन ए एंड सी सही है, बी गलत है. बी कह रहा है द लॉन्च रीअफर्म्ड इंडियाज कमिटमेंट टू डीकार्बनाइज द स्टील सेक्टर, जो कि अलाइनमेंट है विद नेट जीरो एमिशंस ऑफ इंडिया टारगेट बाय 2040. तो इंडिया का टारगेट तो 2040 नहीं है, 2070 है कि हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है. Next, with which company the Ministry of Defence has recently signed a contract worth 13,500 crore rupees for the procurement of 12 indigenous Sukhoi 30 Mark 1 fighter jets for the Indian Air Force? तो किस कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ या फिर किस कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है. एंड 12 सुकोई 30 Mark 1 फाइटर जेट्स यहाँ पे प्रोक्योर किए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए. नेक्स्ट, which of the following are correct with respect to the UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation in December, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुआ? तो अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे. नेक्स्ट, वेयर विल द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स टेक प्लेस बिटवीन जनवरी एंड Feb 25, जो कि ऑर्गेनाइज की गई मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के द्वारा. राइट, तो ये देखो अभी लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिलेंगे ये 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स. एंड ये इससे जो खेलो इंडिया का सीजन है ना वो स्टार्ट हो जाएगा. एंड फिर अप्रैल में 2025 में हमें देखने को मिलेगा यूथ खेलो इंडिया यूथ एंड पैरा गेम्स. कहाँ पे? बिहार में होंगे ये. नेक्स्ट, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया. पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रमोट किया इस डे को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर? तो कौन प्रमोट कर रहा है इसको? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्रमोट कर रहा है. पहली बार इस डे को 1991 में ऑब्जर्व किया गया था. नेक्स्ट, विच डॉक्यूमेंट्री हैज रिसेंटली वन द 2024 एशियन अकेडमी क्रिएटिव्स अवार्ड इन सिंगापुर? वो है द हंट फॉर वीरप्पन. नेक्स्ट, astronomers from Indian Institute of Astrophysics spotted far ultraviolet emissions. ये FAR को स्पॉट किया गया फ्रॉम नॉर्वे फॉर द फर्स्ट टाइम. कहाँ से? इसको एंड्रोमेडा गैलेक्सी से स्पॉट किया गया था और ये हमारी नियर बाय गैलेक्सी है. राइट, नेबरिंग गैलेक्सी है ये. नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया पहला इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव, जो कि 11 दिसंबर से 12 दिसंबर तक हुआ. वेयर इज द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बीइंग डेवलप्ड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,000 करोड़ रुपीज ओवर द नेक्स्ट 5 years बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये लोथल गुजरात में सेटअप किया जा रहा है. लोथल एक एंशियंट पोर्ट है. राइट, एंड इसके डेवलपमेंट से इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर में को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा. Next, students, is our homework section. First question is, tell me when do we observe National Solidarity Day? Second, tell me when do we observe World Food Day?
And third question, tell me, when do we observe World Standards Day? Do give me the theme also of these days, right? Now let's move to the Hindi segment of this video, students. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर से। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसंके। आप इनको यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ये अभी विजिट पे थे इंडिया की फ्रॉम 15 से 17 दिसंबर, एंड ड्यूरिंग दिस विजिट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अनुरा कुमारा दिसंके, इनके बीच में काफ़ी सारी डिस्कशंस हुई, बायलैटरल मीट्स डिस्कशंस हुई। यहाँ पे इनके द्वारा भी 2 अग्रीमेंट साइन किए गए ऑन डबल टैक्सेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग के लिए, एंड दूसरा था फॉस्टरिंग पार्टनरशिप फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। ये एक जॉइंट स्टेटमेंट लॉन्च की गई है दोनों कंट्रीज़ के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड L&T के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया 100 एडिशनल K9 वज्रा टी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स के लिए। ये आर्टिलरी गन्स बेसिकली काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे इंडिया के डिफेंस को बढ़ावा देने के लिए। यहीं पे आप देखेंगे ये जो आर्टिलरी गन्स है ना, बाय इंडियन राइट, इंडियन प्रोडक्ट्स हमें बाय करना है राइट, मेक इन इंडिया के अंदर, आत्मनिर्भर भारत के अंदर राइट, ये लाई गई हैं। एंड इसके अंदर ही यहाँ पे इनको बेसिकली क्या होगा, प्रोडक्शन इंडिया में होगी तो इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी राइट, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इससे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट 2017 में हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने L&T को दिया था। एंड इसकी जो पहली 10 गन्स थी ना, वो तो असेंबल करके इम्पोर्ट की गई थी, लेकिन जो बाकी 90 गन्स थी उनको इंडिया की L&T हजीरा फैसिलिटी जो कि गुजरात में, वहाँ पर बनाया जाएगा। ये जो आर्टिलरी गन्स है 40 किलोमीटर्स तक की इनकी रेंज रहेगी, एंड दे कैन लॉन्च अ प्रोजेक्टाइल एट अराउंड 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट आ जाते हैं ई श्रम पोर्टल। ये ई श्रम पोर्टल बेसिकली एक नेशनल डाटाबेस है। नेशनल डाटाबेस किनका डाटाबेस है? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का। आई रिपीट, ये एक नेशनलाइज या फिर एक ई श्रम पोर्टल, ये एक नेशनल डाटाबेस है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का। अब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को प्रॉपर एक डाटाबेस देने के लिए राइट, उस डाटाबेस के मदद से सरकार लोगों को बेटर स्कीम से सुविधा प्रोवाइड करा सकती है राइट, उनको बेटर इनिशिएटिव्स दे सकती है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा सकती है राइट, वेलफेयर स्कीम्स उनके लिए ला सकती है, सोशल सिक्योरिटी ला सकती है उनके लिए स्कीम्स के अंदर। एंड इसी के लिए FY20 से लेकर FY24 के बीच में 704.01 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे अलोकेट किए गए थे सरकार के द्वारा फॉर दीज नेशनल डाटाबेस फॉर ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए राइट, जो कि है ई श्रम पोर्टल। मार्क करेंगे, ई श्रम पोर्टल में भी जो रिपोर्ट आई है वो दर्शाती है कि ई श्रम पोर्टल में यूपी ने टॉप किया है राइट, सेकंड पोजीशन पे बिहार, थर्ड पे वेस्ट बंगाल, फोर्थ पे मध्य प्रदेश एंड फिफ्थ पे महाराष्ट्र। एंड आप देख सकते हैं 8.37 करोड़ यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस रहे ई श्रम पोर्टल में फ्रॉम यूपी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हम बात करेंगे सशस्त्र सीमा बल का 61st रेजिंग डे इवेंट हमें देखने को मिला। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में देखने को मिला। एंड यहाँ पे कौन चीफ गेस्ट थे? वो थे अमित शाह जी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, अमित शाह यहाँ पे चीफ गेस्ट थे राइट। इसी के दौरान एक ग्रैंड परेड यहाँ पे लॉन्च की गई राइट, जो दर्शाती है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन ऑफ सशस्त्र सीमा बल। एंड द इवेंट इंक्लूडेड द डिस्प्लेस ऑफ मलक्कम। ये क्या है? एक ट्रेडिशनल इंडियन एक्रोबैटिक आर्ट है अलॉन्ग साइड मार्शल आर्ट्स।
मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। इन्होंने इनॉग्रेट किया जीएसआई जियो साइंस म्यूजियम, कहाँ पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ये जो म्यूजियम है ना, इसको डेवलप किया गया है ग्वालियर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के द्वारा मिलकर। ये 2 गैलरी रहेंगी यहाँ पे, गैलरी 1 एंड गैलरी 2। जो गैलरी 1 है वो है प्लेनेट अर्थ से रिलेटेड, प्लेनेट अर्थ। गैलरी 2 जो रहेगी वो है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, राइट। ये 2 गैलरी यहाँ पे रहेंगे इस म्यूजियम में। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड की बिजिएस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट रूट के बारे में, राइट। ये डाटा रिलीज किया गया है OAG के द्वारा। OAG क्या है? आपका ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। इसमें बताया गया कि इंडिया की मुंबई से दिल्ली वाली जो फ्लाइट है ना, वो 8 बिजिएस्ट पोजीशन पर आ जाती है, राइट। 2023 में ये 9th पोजीशन पे थी, लेकिन अब ये 8th पोजीशन पे आ गया, मतलब और बिजी हो गई है। तो ये यूके बेस्ड है, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। इनके द्वारा बिजिएस्ट फ्लाइट रूट्स इन द वर्ल्ड 2024 की डाटा रिलीज की गई, जिसमें बताया मुंबई से दिल्ली जो रूट है ये 8th बिजिएस्ट रूट आ जाता है वर्ल्ड में। टॉप पे सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रूट कौन सा है? हांगकांग से तेईपेई, राइट। हांगकांग से तेईपेई फर्स्ट, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और 8 पे मुंबई टू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हाईलाइट ऑफ द 208 मीटिंग ऑफ द सेबी बोर्ड। इसकी मीटिंग की बात करें तो सेबी की यहाँ पे कुछ रिवाइज हाइलाइट्स हैं जो आप देख सकते हैं। मर्चेंट जो बैंकर्स हैं अदर देन द बैंक्स एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर सब्सिडीज, दे शुड अंडरटेक ओनली परमिटेड एक्टिविटीज। देयर विल बी 2 कैटेगरीज ऑफ द मर्चेंट बैंकर्स बेस्ड ऑन द नेटवर्थ एंड एक्टिविटीज, एंड दे शुड मेंटेन अ लिक्विड नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 25% ऑफ देयर मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट। जो अंडरराइटिंग लिमिट होगी मर्चेंट बैंकर्स के लिए, दे हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज 20 टाइम्स ऑफ द लिक्विड नेटवर्थ। देन आईपीओ के रूल्स आ गए हैं कि अगर आपको आईपीओ निकालना है किसी भी कंपनी को, कि उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए आफ्टर टैक्स, राइट, बिफोर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ऑफ 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम द ऑपरेशंस फॉर एनी 2 आउट ऑफ द 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स। देन सेबी बोर्ड हैव अप्रूव्ड द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स फॉर द एसडीआई, जो कि है सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, एंड जो ये एसडीआई इंश्योरेंस है एंड इट्स ट्रांसफर शुड बी लिस्टेड ओनली इन डीमैट फॉर्म। देन सेबी ने लॉन्च किया नया इनिशिएटिव जो कि है परवा, जो कि है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, टू प्रिवेंट द मिसलीडिंग क्लेम्स अबाउट द इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। सेबी ने यहाँ पे एक और चीज़ लॉन्च की है, और दैट सेबी हैज़ इंक्रीज्ड द थ्रेशोल्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज फ्रॉम 500 करोड़ रुपीज टू 1000 करोड़ रुपीज, विच इज़ इन पार विद द लार्ज कॉर्पोरेट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई की अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई कि जो स्टेट के द्वारा फ्रीबीज दी जा रही है ना, राइट, वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। एंड कहीं ना कहीं अगर हम उनको फ्रीबीज देते रहेंगे, इससे हमारा जो अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड होता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो हमें कम होता हुआ दिख रहा है, राइट। तो फ्रीबीज कहीं ना कहीं हमें सरकार के द्वारा कम कर देनी चाहिए। तो यही आरबीआई के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई कि दैट लाइक लोन वेवर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री ट्रांसपोर्ट, ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा दी जा रही है, दिस कुड पॉसिबली क्राउड आउट देयर रिसोर्सेज फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राइट। एंड यहीं पे बताया कि जो रिपोर्ट ने बताया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है फॉर देयर प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स फाइनेंशियल कंसोलिडेशन बाय कंटेनिंग देयर ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट विद इन 3% ऑफ द जीडीपी फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। ऑल्सो रिपोर्ट स्टेट करती है कि द स्टेट हैज एस्टिमेटेड अ ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3.2%। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ल्ड बैंक ने अभी अप्रूव किए $800 मिलियन का लोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अमरावती, राइट। अमरावती को ग्रीन सिटी बनाने की बात की जा रही है। अमरावती कहाँ की कैपिटल है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। एंड इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $800 मिलियन का लोन यहाँ पे अप्रूव करा है, राइट। एक और चीज़, ये जो लोन है 29 साल के लिए लिया गया है, 6 साल का ग्रेस पीरियड रहेगा, एंड जैपनीज येन में सरकार के द्वारा यहाँ पे ये लोन लिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर आरबीआई ने अप्रूव किया कैनरा बैंक का प्लान टू सेल देयर स्टेक इन 2 सब्सिडरीज, करेक्ट। तो कैनरा बैंक जो कि बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड है, ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये अपना शेयर सेल कर रहे हैं कैनरा रोबेका एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि गुरुग्राम बेस्ड रहेगी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस पर। प्रीमियर एक्सप्लोजिव एंड ग्लोबल म्यूनिशंस, इन्होंने एक एमओयू साइन किया टू एस्टैब्लिश अ जॉइंट वेंचर। 51-49% का ये जॉइंट वेंचर रहेगा इन डिफेंस एंड एरोस्पेस। इससे प्रीमियर एक्सप्लोजिव का काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एनवीडिया, इन्होंने पार्टनर किया वियतनाम गवर्नमेंट के साथ ताकि एक एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डाटा सेंटर को एस्टैब्लिश किया जा सके वियतनाम में। आई रिपीट,
यूएसए बेस्ड एनवीडिया कॉर्पोरेशन, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम के साथ एक एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर एंड एआई डाटा सेंटर को यहाँ पे एक सेटअप करने की बात करी वियतनाम में। काफ़ी बड़ा हेल्प बूस्ट मिलेगा वियतनाम को, राइट। एंड एनवीडिया को भी काफ़ी ज़्यादा चीप लेबर यहाँ पे पड़ेगा अगर वो यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि इस्टेब्लिश तो कर ही दिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनको बेनिफिट भी देखने को मिलेगा ऑपरेशंस में, राइट। इससे क्या होगा, ये हेल्प करेंगे वेरियस स्टार्टअप्स को, वेरियस बिजनेसेस को, राइट। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा फोकस में रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर। तो राम टेम्पल जो अयोध्या यूपी में है, इनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया फॉर सेफ्टी एक्सीलेंस। मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है, काफ़ी सेफली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है इसको L&T के द्वारा। एंड 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स यहाँ पे दी गई हैं और इसीलिए यहाँ पे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित कराया गया कि इनकी जो क्वालिटी है, सेफ्टी है, राइट, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, वो टॉप नॉच है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर IWI इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कालूघाट IMT को अभी रिसेंटली रिकॉग्निशन मिला फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। आई रिपीट, इंटरमॉडल टर्मिनल एट कालूघाट इन बिहार डेवलप्ड बाय इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको 5 स्टार स्वागिरा से सम्मानित किया गया है। स्वागिरा क्या है, बेसिकली आपका सिंपल वर्सेटाइल अफोर्डेबल गृहा, राइट। गृहा क्या है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, करेक्ट। ये एक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग है। बेसिकली ये दर्शाता है कि यूज ऑफ रिसाइकल मटेरियल्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टर्मिनल। ये जो टर्मिनल है ये बनाया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, फंडेड बाय जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, राइट। एंड नेशनल वाटरवेज 1 जो कि गंगा रिवर का है, उसको यहाँ पे एक्सटेंड करने के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए इसको बिल्ड किया जा रहा है। 82.48 करोड़ रुपीस की लागत से इसको यहाँ पे बनाया गया था, राइट। तो इनको सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तरीके से यहाँ पे, राइट, सस्टेनेबली इसको ग्रो किया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है, इसलिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया स्वागिरा रेटिंग से। और एक और चीज़ है, जो स्वागिरा रेटिंग है ना, ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड TERI, दैट इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। मूविंग ऑन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र के द्वारा जो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव, उसको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, राइट। ये गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, ये इनिशिएटिव लॉन्च कब किया गया था, मई 2023 में लॉन्च किया गया था एट पटना एंड सतारा डिस्ट्रिक्ट, राइट। एंड इसके अंदर वेरियस स्कीम्स यहाँ पे लोगों के घर तक पहुंचाई जाएगी, जिनको अवेयरनेस नहीं है उनको अवेयरनेस क्रिएट कराई जाएगी, एंड उनको जो बेनिफिट है, बेनिफिशियरीज हैं, उन तक यहाँ पे पहुंचा जाएगा डोर टू डोर। 5 करोड़ से भी ज़्यादा बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं लोगों को घर घर जाकर इस इनिशिएटिव के अंडर, राइट। एंड 280 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रहते हैं इस स्कीम के अंदर, जिससे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो ये है गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है, देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट आ जाते हैं REC लिमिटेड, इन्होंने भी गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता 2024 का फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट। REC लिमिटेड ये एक महारत्ना CPSU है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, राइट। एंड दे हैव बीन अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर प्रीति लोबाना, इनको अपॉइंट किया गया गूगल इंडिया का न्यू कंट्री मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये सक्सीड करेंगे इंटर्म हेड रोमा दत्ता चौबे एंड सक्सीड संजय गुप्ता, जिनको अभी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया है एशिया पैसिफिक रीजन का। तो कौन बनी है नई कंट्री मैनेजर, इंडिया की कंट्री मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट, वो है प्रीति लोबाना। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। अभी मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा डिलीवर की गई 2 एडवांस वॉरशिप, जो कि है नीलगिरी एंड सूरत, इंडियन नेवी को ये डिलीवर की गई हैं। अगर मैं ये नीलगिरी की बात करूँ, ये है यार्ड 12651 एंड सूरत है यार्ड 12707। ऑल्सो नीलगिरी जो है ये पहली स्टेल्थ फ्रेगेट है ऑफ द प्रोजेक्ट 17A क्लास, एंड जो सूरत है ये 4th स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर रहेगी ऑफ द फाइनल शिप एंड द फाइनल शिप ऑफ द प्रोजेक्ट 15B क्लास ऑफ द गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। मुंबई महाराष्ट्र में इनको डिलीवर किया गया, करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑबिटरी के ऊपर। फॉर्मर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला जी, इनका निधन हो गया अभी रिसेंटली, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। गुरुग्राम हरियाणा में इनका निधन हुआ एट द एज ऑफ 89। ये 5 टाइम चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं हरियाणा के। नेक्स्ट, इकोनॉमिक हिस्टोरियन अमैया कुमारा बागची, इनका रिसेंटली निधन हो गया, राइट। फॉर्मर प्रोफेसर, इकोनॉमिक हिस्टोरियन एंड फाउंडर डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज ऑफ कोलकाता, अमैया कुमारा बागची, इनका निधन हो गया ड्यू टू हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2005 में।
नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल फार्मर्स डे। 23 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं फार्मर्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड जो कंट्रीब्यूशन है फार्मर्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया के उसके लिए, एज वेल एज राइट ये डे ऑब्जर्व करता है बर्थ एनिवर्सरी टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी ये हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, राइट एंड इन्हीं के बर्थ को ऑनर करने के लिए, बर्थडे को ऑनर करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार हमने 122वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी 2024 में एंड इस डे की एक थीम थी एम्पावरिंग अन्नदाताज फॉर अ प्रॉस्परस नेशन, राइट। इसी डे को हम किसान दिवस भी बोलते हैं, नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार ये डे 2001 में ऑब्जर्व किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको अपॉइंट किया गया, डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। तो किनको अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ एयर फोर्स, तो वो रहेंगे तेजिंदर सिंह, राइट एंड ये सक्सीड किनको करेंगे, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को। नेक्स्ट किनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो डी के सुनील को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, ये सक्सीड करेंगे सीबी अनंत कृष्णन को। नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं, अमृत लाल मीना, ये सक्सीड किनको करेंगे, ब्रिजेश मेहरोत्रा को। नेक्स्ट किनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज का, तो वाई हरा गोपाल, इनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको रिसेंटली या कौन थे वो पहले इंडियन टू बी ऑफिशियली नेम्ड एज द फाउंडेशन एम्बेसडर ऑफ ITTF फाउंडेशन के, तो वो है शरद कमल अचंता, ठीक। नेक्स्ट है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, माइकल बार्नियर, राइट टेक अ नोट ऑफ दिस, ये चार्ज लेंगे फ्रॉम द आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल एटल। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको रिसेंटली रिकमेंड किया गया फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय FSIB, तो रामा मोहन राव अमारा, इनको यहाँ पे रिकमेंड किया गया फॉर द पोजीशन ऑफ MD ऑफ SBI बाय FSIB। नेक्स्ट है हु वाज रिसेंटली नेम्ड एज द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ सेबी, बोर्ड मेंबर ऑफ सेबी कौन बने हैं अभी रिसेंटली, वो हैं दीप्ति गौर मुखर्जी। नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इन सितंबर, कौन बने थे, वो है राजा रणधीर सिंह, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन शूटर जिन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था एशियन गेम्स में 1978 में। नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो कौन अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पे, वो रहेंगे सुब्रता मोंडल, ठीक है एंड ये सक्सीड किनको करेंगे, HO सूरी को ये यहाँ पर सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट है किनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो तुहिन कांता पांडे, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ये सक्सीड करेंगे TV सोमनाथन को। नेक्स्ट किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द कंट्रोलर ऑफ पर्सनल सर्विसेज इन द इंडियन नेवी, तो किनको अपॉइंट किया गया है, तो है वाइस एडमिरल विनीत मकार्थी को, राइट इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द कंट्रोलर ऑफ पर्सनल सर्विसेज इन द इंडियन नेवी। नेक्स्ट किनको अभी रिसेंटली इलेक्ट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह को यहाँ पे चेयरमैन अपॉइंट किया गया इस कमेटी का। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है मनीष कुमार गुप्ता, राइट ये सक्सीड किनको करेंगे, ये सक्सीड करेंगे CS धर्मेंद्र को एंड CS धर्मेंद्र अगर आपको याद हो तो ये अपॉइंट किए गए थे क्या एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, धर्मेंद्र जी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर किन हु इज सेड टू बी रीइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIH फॉर सेकेंड टर्म रहेगा इनका एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIH के, कौन है वो है मोहम्मद तैयब इकरम। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट
वन ऑफ द 6 सीनियर एडवोकेट्स जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया था बाय एसीसी के द्वारा टू सर्व एज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इन द सुप्रीम कोर्ट। तो इनमें से कौन से नहीं है, वो तुषार मेहता यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस। तो गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस के कौन अभी एमडी एंड सीईओ अपॉइंट यहाँ पर किए गए हैं, तो वो हैं गोपालन श्रीनिवासन। नेक्स्ट, उन क्रिकेटर का नाम बताओ जिनको ऑन बोर्ड किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। सो राहुल शरद द्रविड़, इनको यहाँ पे ऑन बोर्ड किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो वो रहेंगे जाफर हसान। जाफर हसान नए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जॉर्डन के। नेक्स्ट, किनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये रहेंगी मनु बाकर, राइट। ये एक शूटर है और पेरिस ओलंपिक गेम्स में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे इंडिया के लिए जीते। नेक्स्ट, किनको भी रिसेंटली इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 68th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राइट। तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर एज द 68th प्रेसिडेंट ऑफ द 68th जनरल कॉन्फ्रेंस का, तो वो कौन रहेंगे, सांग वोक हाम यहाँ पे ये अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं देन किनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, राइट। ये सक्सीड किनको करेंगे, ये सक्सीड करेंगे अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट, किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ एडीए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो किनको अभी अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ एडीए, वो है जितेंद्र जे जाधव को। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली हु हैज रिसेंटली लॉन्च ग्रीवियंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स GRAI, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, अभी ये पूछा गया है। तो जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जितेंद्र सिंह हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पर्सनल्स हैं। इनके द्वारा GRAI 2023 को लॉन्च किया गया है, राइट। एंड इसकी एक नेशनल वर्कशॉप हुई थी जो कि विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुई। इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कराया गया था DARPG के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ग्रीवियंसेस के द्वारा। जो पहला एडिशन था GRAI का वो 2022 में लॉन्च किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने भी रिसेंटली पार्टनर किया अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ टू लॉन्च द 4th कोहॉर्ट ऑफ कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। तो किन्होंने किया, ये केप जेमिनी इंडिया ने यहाँ पे रिसेंटली पार्टनर किया है अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ, ताकि 4th कोहॉर्ट ऑफ कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। इसका एम रहेगा कि सस्टेनेबल सॉल्यूशंस यहाँ पे डेवलप किया जा सके लोकल कम्युनिटीज़ में, रूरल कम्युनिटीज़ में, ताकि वहाँ पे इनोवेशन प्रमोट की जा सके। एंड यहाँ पे हर फेलो को 1 लाख रुपए तक का कैश प्राइज दिया जाएगा ताकि वो अपने इनोवेशन को फर्दर स्केल कर सके। नेक्स्ट, किस क्लस्टर ने रिसेंटली ज्वाइन किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव को टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएट जॉब्स, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को। तो किस क्लस्टर ने ज्वाइन किया, वो है AM ग्रीन काकिंदा क्लस्टर। ये AM ग्रीन काकिंदा क्लस्टर बेसिकली कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। एंड इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। यहाँ पे 3 बिलियन से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। 10,000 प्लस जॉब्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स यहाँ पे डेवलप की जाएगी। एंड 2026 में इसका ऑपरेशन स्टार्ट होगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को यहाँ पे जीरो करने की बात की गई है। अगला है कि किस कंपनी ने अभी येस बैंक के साथ मिलके एंड NPCI के साथ मिलके एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की बात करी। तो किन्होंने पार्टनर किया, रियो मनी। रियो मनी एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड है। इन्होंने येस बैंक एंड NPCI के साथ मिलकर यहाँ पे ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की बात की गई। अगले पर आते हैं, अभी कौन सी कोस्टल, किन 24 कोस्टल विलेजेस को किस स्टेट में से डिक्लेयर किया गया सुनामी रेडी बाय यूनेस्को। तो ओडिशा की 24 कोस्टल विलेजेस को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है सुनामी रेडी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, अभी 56 टाइगर रिजर्व बना इंडिया का, कौन सा नेशनल पार्क है वो है गुरु घसीदास तमोर पिंगला नेशनल पार्क, जिसको अभी 56 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ में है। ये 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन गया है। बताओ फर्स्ट
लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया का कौन सा है, किस स्टेट में है, ये दोनों आपका होमवर्क रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा भी एक कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि जो टाइगर पॉपुलेशन है ना वो कहीं ना कहीं इंडिया में इंक्रीज होती हुई दिखी है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली या विच कंट्री इज रिसेंटली डेवलपिंग द आयरन बीम, ये एक लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम है कि आपकी जो इनकमिंग मिसाइल्स होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो ये आयरन बीम किसका है, इजराइल का है, राइट। एंड अभी इजराइल को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इस आयरन डोम ने, बहुत सारी मिसाइल्स को इन्होंने रोका है। ऐसा ही सिमिलर काइंड का एक आयरन बीम इंडिया के पास भी है, उसका नाम क्या है वो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, थोड़े टाइम पहले इंडिया ने डेवलप किया है। नेक्स्ट, उस पोर्टल का नाम बताओ जो लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द इंडिया वाटर वीक 2024 के दौरान 17 से 20 सितंबर तक न्यू दिल्ली में। तो उस पोर्टल का नाम क्या है, भू नीर उस पोर्टल का नाम रहेगा। पोर्टल मतलब वेबसाइट। इसको 8th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर वीक के दौरान लॉन्च किया गया था एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा जहां पर आप मैनेज कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को, जिससे एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट, कहाँ पर फर्स्ट एडिशन ऑफ सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग को, जो कि साउथ एशिया का लार्जेस्ट मैरीटाइम थॉट लीडरशिप समिट है, इसको लॉन्च किया गया या फिर कहाँ पर हुआ था, 18 से 19 नवंबर तक ये, राइट। तो यह है पहला एडिशन, इनॉग्रल एडिशन ऑफ सागर मंथन। तो सागर मंथन हुआ कहाँ पर था, ये न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिला था। न्यू दिल्ली में भी इसकी इवेंट हुई थी, न्यू दिल्ली में भी कहाँ पर, ITC मौर्या होटल में, ठीक है। यहाँ पर मैरीटाइम सेक्टर को ग्रो करने की बात की गई, ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 इंडिया की क्या रैंक रहेगी, इंडिया 10th पोजीशन पे आ जाता है, इंडिया 10th पोजीशन पे आ जाता है इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, राइट। पहले 3 पोजीशन यहाँ पे खाली छोड़ी गई हैं क्योंकि किसी भी कंट्री ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 4थे पोजीशन पे आ जाता है डेनमार्क, 5वें पोजीशन पे आ जाता है नीदरलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द इंदिरा गांधी पी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2023 अवार्ड अलॉन्ग विद अली अबू आवद। तो अली अबू आवद एंड डेनियल बेरेनबोइम, इन दोनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट के लिए एंड पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के लिए, राइट, उनके सोशल वर्क के लिए, उनकी पीस वहाँ पे प्रमोट करने के लिए, नॉन वायलेंस को प्रमोट करने के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ उज्बेकिस्तान। तो अब्दुल निगामोतोविच अरिपोव, इनको अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट, किनको रिसेंटली रीइलेक्ट किया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। प्राइम मिनिस्टर जापान के कौन रीइलेक्ट करे गए हैं, वो है शिगुरु इशिबा। नेक्स्ट, किस लेबोरेटरी में रिसेंटली डेवलप किया गया इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड वेफर्स एंड फैब्रिकेटिंग गैलीलियम नाइट्रेट हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर्स को अलॉन्ग विद मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो सिलिकॉन कार्बाइड वेफर्स एंड गैलीलियम नाइट्रेट हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर्स को अभी कहाँ पे डेवलप करने की बात की गई, किस फैक्ट्री में, फैक्ट्री का नाम रहेगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी, ये DRDO का ही यूनिट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस कंट्री की हॉकी टीम ने जीता वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी को। तो हमारे इंडिया ने इसको जीत लिया है, राइट, तीसरी बार हमने इसको जीता है। ये 8वां एडिशन था वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का। इसका फाइनल इवेंट या फिर ये हुआ कहाँ पे था, बिहार में हुआ था। इंडियन वीमेंस टीम ने चाइना की वीमेंस टीम को यहाँ पे फाइनल में हराया। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली रिटायर्ड, किन्होंने रिटायरमेंट ले लिया प्रोफेशनल टेनिस से फ्रॉम डेविस कप, राइट, या फिर हम बोले टेनिस से अभी किन्होंने रिटायरमेंट ले ली, वो है राफेल नडाल। एंड राफेल नडाल का ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। इनका ये अभी आखिरी कप इन्होंने खेला था, डेविस कप खेला था, इनका लास्ट इवेंट था। और डेविस कप भी कहाँ पर हुआ था, ये भी आपका स्पेन में ही हुआ था डेविस कप, राइट। एंड जीता किसने डेविस कप, इटली की टीम ने यहाँ पे जीता। नेक्स्ट, विच एनिवर्सरी, कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई विद द रिलीज ऑफ अ कमेमोरेटिव स्टैम्प ऑनर करने के लिए वत्ताल टेम्पल। तो ये 200th एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की गई है, राइट। चलिए नेक्स्ट, एंड ये जो टेम्पल है ये सर्व करता है एज अ स्पिरिचुअल कैपिटल फॉर श्री स्वामीनारायण संप्रदाय। अगला है, वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, हुई 5 से 6 नवंबर तक। तो पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ पर हुई, न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिली, राइट, 5 से 6 नवंबर तक। और इस थीम थी एक, इस समिट की थीम जरूर नोट कीजिएगा, रोल ऑफ बुद्धा धामा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। नेक्स्ट, एंड यहीं पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम एज अ चीफ गेस्ट थी।
नेक्स्ट, किनको रिसेंटली रिलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड सेलिंग? तो ली क्वान हाई, राइट, इनको रिलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड सेलिंग का। नेक्स्ट, पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज हुई थी, अभी 2 फेजेस में हुई थी, इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था उसको। नाम क्या है उसका? वो है सी विजिल, राइट। ये आपकी पैन इंड 4th एडिशन था, एक तो ये याद रखेंगे 4th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, राइट। एंड ये पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज थी। ऑन द कोस्ट्स ऑफ केरला, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्होंने रिसेंटली रिवाइज किया कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस को फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू एनहेंस ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, शेयर होल्डर रिटर्न्स एंड रेगुलेटरी चेंजेस को? तो किस डिपार्टमेंट ने? वो है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के द्वारा। यहीं पे जो CPSCs हैं उनको मिनिमम एनुअल डिविडेंड पे करना होगा 30% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर 4% ऑफ देयर नेट वर्थ जो भी हायर होगी। एंड CPSCs जिनकी नेट वर्थ 3000 करोड़ रुपए है, कैश रिजर्व है 1500 करोड़ रुपए एंड ट्रेडिंग बुक बिलो वैल्यू फॉर द 6 मंथ, उनको भी शेयर बायबैक का यहाँ पे कंसिडर ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज की रिपोर्ट चार्टिंग न्यू पाथ्स फॉर जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावरमेंट, एशिया पैसिफिक रीजन रिपोर्ट ऑन बीजिंग +30 रिव्यूज? ये स्टेट करती है कि इंडिया का स्ट्रगल विद लिमिटेड इफेक्टिवनेस ऑफ इस जेंडर रिस्पॉन्सिंग बजटिंग, मतलब इंडिया में मेल्स एंड फीमेल्स का जो जेंडर इक्वेलिटी है, जो जेंडर पैरिटी है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें बढ़ती हुई दिखी है। एंड इंडिया में जो इसमें लोगों को हेल्प किया जाए या फिर हम बोलते हैं जो इनिशिएटिव्स इंडिया के द्वारा लेने चाहिए वो कहीं ना कहीं कम हमें दिखे हैं। पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज की है, तो यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक बॉडी के द्वारा यहाँ पे और एशिया पैसिफिक रीजन ये रिपोर्ट रिलीज की गई। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली या विच कंट्री रिसेंटली बिकेम 104th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया था, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में रहेगा। एंड अर्मेनिया अभी 104th मेंबर बन गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया यूनिसेफ के साथ ताकि जो डिजास्टर रेजिलियंस एंड क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट है उसको बढ़ावा दिया जा सके? तो किस बैंक ने यहाँ पे टाइप किया? वो रहेगा इंडसइंड बैंक, राइट। इन्होंने टाइप किया किसके साथ? यूनिसेफ के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया एक इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉपरेशन इन स्पेस एक्टिविटीज बिटवीन बोथ द कंट्रीज? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है ये इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट? ये है इसरो ने यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन किया है। एंड यहाँ पे इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो एंड ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी गगनयान मिशन के ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट, चाइना के पहले कमर्शियल अनक्रूड स्पेस प्लेन जिसको भी रिसेंटली अनवेल किया गया एट द जुहाई एयर शो, जुहाई चाइना, उसका नाम क्या रहेगा? तो वो है स्काई ड्रैगन। स्काई ड्रैगन बोले या फिर हाओलोंग 1, ठीक है। नेक्स्ट है उस ऑथर का नाम बताओ जिन्होंने माँ मदर इस बुक को अभी रिलीज किया गया। तो माँ मदर ये किन के द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार ढोडावट के द्वारा, राइट। इस बुक में बताया गया है, एक तो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी ये बुक, पोएम्स के फॉर्मेट में यहाँ पे मदरहुड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार ढोडावट ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं टू द गवर्नर ऑफ केरला। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 इंडिया ने रैंक किया क्या ग्लोबली विद ओवरऑल स्कोर ऑफ 24 आउट ऑफ 100? तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी यहाँ पर इन द सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स? तो इंडिया 23rd पोजीशन पर आ जाता है। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में टॉप किसने किया? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे टॉप किया है, आई करेक्ट न्यूजीलैंड ने यहाँ पे टॉप किया है इन सस्टेनेबल ट्रेड इकोनॉमी में या इंडेक्स में। एंड ये वर्ल्ड की मोस्ट सस्टेनेबल ट्रेड इकोनॉमी है फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI's डाटा जो 20 नवंबर को रिलीज किया गया, जो नेट इनफ्लोज थे थ्रू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, राइट, उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला फ्रॉम 6.8 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY24, ये बढ़ के कितना हो गया? $7.9 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ ताकि जो लोकल करेंसीज का यूज है ट्रेड में, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में, वो बढ़ सके? तो इंडिया से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मालदीव से मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच में ये टाई अप हमें MOU देखने को मिला।
नेक्स्ट है किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ अलॉन्ग विद भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, ताकि भारत संजीवनी कृषि उत्थान इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके, तो वो है इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट, किसने रिसेंटली टुक ओवर किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की फॉर FY25, कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है हर्षवर्धन अग्रवाल। ये किनको सक्सीड करेंगे, अनीश साहत को। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद इंडिया 2024 में, वो है फिलीपींस। नेक्स्ट, हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ उत्काल केशरी डॉक्टर हरि कृष्णा मेहताब न्यू दिल्ली में, तो किन्होंने इनॉग्रेट किया, वो है द्रौपदी मुर्मू मैम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में किन्होंने टॉप किया, तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में एंड मोस्ट नेटवर्क रेडी या वर्ल्ड लीडर कौन है नेटवर्क रेडीनेस में, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट, जो कि एक ग्लोबल फ्लैगशिप रिपोर्ट है यूनिसेफ की, राइट, इसमें बताया गया कि जो ग्लोबल चाइल्ड पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज हो जाएगी 2050 तक, कितनी 2.3 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी बच्चों की। सबसे ज़्यादा बच्चे हमें एशियन रीजन में, साउथ एशिया में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, सेबी ने इशू किया एक सर्कुलर अबॉलिशिंग द अर्लियर रिक्वायरमेंट मैंडेटिंग इशूअर कंपनीज टू डिपॉजिट 1% ऑफ देयर पब्लिक इशू साइज विद स्टॉक एक्सचेंज बिफोर लॉन्चिंग द पब्लिक इशू। जब वो IPO वगैरह लॉन्च करते हैं तो उससे पहले उनको अपना 1% यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में आने से पहले उनको 1% यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंजेस को। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंक्रीज किया मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर UPI 123 पे 5,000 से बढ़ा के उसको 10,000 कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2025। एक और चीज़ यहाँ पर, जो UPI लाइट है उसमें भी 2,000 की जो लिमिट थी उसको बढ़ा के अब 5,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट, हु रिसेंटली ऑनर्ड डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड को, ताकि जो माइनॉरिटी ऑफ कम्युनिटी हैं उनके अपलिफ्टमेंट के ऊपर इन्होंने काम किया है। USA के में मैरीलैंड में इनको सम्मानित किया गया, वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, किन को रिसेंटली अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ लिथुआनिया, वो है जैनटॉटस पालुकास। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली कंप्लीट किया 9th ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड 28वां फ्लाइट अपने न्यू शेपर्ड प्रोग्राम का, तो ये ब्लू ऑरिजिन का है न्यू शेपर्ड प्रोग्राम। ब्लू ऑरिजिन किनके द्वारा ऑन की जाती है, जेफ बेजोस के द्वारा। नेक्स्ट, किन्होंने रिसेंटली 2024 का लास वेगस ग्रैंड पिक्स को जीता, तो लास वेगस ग्रैंड पिक्स को जीतने वाले व्यक्ति कौन है, ड्राइवर वो है जॉर्ज रसल। ये UK से बिलोंग करते हैं, मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। लुइस हैमिल्टन सेकंड पोजीशन पे है, ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, किस बैंक ने, विच बैंक एक्टेड एज अ पार्टनर ऑफ द G20 इन 2024, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे पार्टनर था G20 का इन 2024। नेक्स्ट, TCM स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इन्होंने सिक्योर किया एक्सक्लूसिव कमर्शियल स्पॉन्सरशिप राइट्स फॉर सभी एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप टूर्नामेंट के, कब तक, 2031 तक। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिसेंटली पब्लिश की एक रिपोर्ट एनहेंसिंग डोमेस्टिक कुकिंग कोल अवेलेबिलिटी, जिसके अंदर बताया गया कि जो कुकिंग कोल है इसको भी एक क्रिटिकल मिनरल यहाँ पे घोषित करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, तो नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। नेक्स्ट, किस नई मैगजीन ने अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज करा 6ठा एडिशन ऑफ साहित्य आज तक, या फिर किस न्यूज़ मैगजीन ने, नई मैगजीन ने, किस न्यूज़ मैगजीन ने ऑर्गेनाइज कराया 6ठा एडिशन ऑफ साहित्य आज तक, जो कि एक प्रेस्टिजियस लिटरेरी फेस्टिवल है न्यू दिल्ली में हुआ, तो इंडिया टुडे के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। एंड इसी के दौरान द्रौपदी मुर्मू मैम ने 6th एडिशन ऑफ साहित्य आज तक प्रेस्टिजियस लिटरेरी फेस्टिवल को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया एंड यहाँ पे अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, 11th एडिशन ऑफ एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीट प्लस, ये अभी हमें देखने को मिली, कहाँ पर हुई, 20 से 22 नवंबर में हुई, और कहाँ पर हुई, ये वियंटीन लाओ PDR में हमें देखने को मिली। नेक्स्ट आ जाते हैं RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए मार्केट में वेरिएबल रेपो रेट के थ्रू कितना फंड्स यहाँ पे इन्फ्यूज किया है मार्केट में, 25,000 करोड़ यहाँ पे इन्फ्यूज किया गया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली, वो पहला या फिर कौन सा बैंक अभी सिग्नेटरी बन गया है PCAF का, जो कि है पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स का, वो है पंजाब नेशनल बैंक। अब पंजाब नेशनल बैंक किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेगा या फंड करेगा उनको किसी भी कंपनी में या प्रोजेक्ट में, तो उनके यहाँ पे एमिशंस को, कार्बन एमिशंस को भी इनको रिपोर्ट करना होगा कि कितना वो एमिशंस कर रहे हैं, राइट, कितना वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड एवरीथिंग।
नेक्स्ट, विच बुक हैज़ रिसेंटली वन द 7th एडिशन ऑफ JCB प्राइज फॉर लिटरेचर? वो है लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। इसको यहाँ पे सम्मानित किया गया फॉर द 7th एडिशन ऑफ द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर। नेक्स्ट स्टूडेंट होमवर्क सेक्शन है। पहला बताओ वो कौन सी फर्स्ट इंडियन वीमेन बनी, फर्स्ट इंडियन वीमेन जिन्होंने स्कोर किए 50 इंटरनेशनल गोल्स, राइट। सेकंड बताओ US ग्रैंड प्रिक्स किन के द्वारा जीती गई, राइट। देन थर्ड बताओ अभी किन्होंने सिल्वर जीता आर्चरी वर्ल्ड कप में, सिल्वर मेडल। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।